So we're reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 11th chapter. The name of the chapter is Lord Krishna's entrance into Dwarka, and we are reading verse number 35. स एष नरलोकेऽस्मिन् अवातीर्ना स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटास्थो भगवान् प्रकृतो यथा. That Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, out of his causeless mercy, appeared on this planet by his internal potency and enjoyed himself amongst competent women as he were engaging in mundane affairs. Who wants to read the purport? Srila Prabhupada ki jai. I can read, Babaji. Hare Yes. Krishna. The Lord married and lived like a householder. This is certainly like a mundane affair, but when we learn that he married 16,108 wives and lived with them separately in each and every palace, certainly it is not mundane. Therefore, therefore, the Lord living as a householder amongst his competent wives is never mundane, and his behavior with them is never to be understood as mundane sex relation. The women who became the wives of the Lord are certainly not ordinary women, because to get the Lord as one's husband is the result of many, many millions of births, tapasya, austerity, appears on different lokas or planets, or on this planet of human beings. His displays his transcendental pastimes just to attract the conditioned souls to become his eternal servitors, friends, parents, and lovers, respectively, in the transcendental world, where the Lord eternally reciprocates such exchange of service. Service is pervertedly represented in the material world and broken untimely, resulting in sad experience. The illusion living being conditioned by material nature cannot understand out of ignorance that all our relations here in the mundane world are temporary and full of inebrities. Such relations cannot help us to be perpetually happy perpetually. But if the same relation is established with the Lord, then we are transferred to the transcendental world after leaving this material body and become eternally related with Him in the relation we desire. The women amongst whom he lived as their husband are not, therefore, women of this mundane world, but are eternally related with him as transcendental wives, a position which they attain by perfection of devotional service. That is their competency. The Lord is Param Brahma, or the Supreme Personality of Godhead. Conditioned souls seek after perpetual happiness in all places, not only on this earth, but also on other planets throughout the universe. Because constitutionally, a spiritual spark, as he is, can travel to any part of God's creation. But being conditioned by the material boards, he tries to travel in space by spacecraft and so fails to reach his destination. The law of gravitation is binding upon him like the shackles of a prisoner. By other processes, he can reach anywhere, but even if he reaches the highest planet, he cannot attain the perpetual happiness for which he is searching life after life. When he comes to his senses, however, he seeks after Brahman happiness, knowing it for certain that unlimited happiness which he is seeking is never attainable in the material world. As such, the supreme being, Para Brahman, certainly does not speak his happiness anywhere in the material world, nor can his paraphernalia of happiness be found in the material world. He is not impersonal. Because he is the leader and supreme being amongst innumerable living beings, he cannot be impersonal. He is exactly like us, and he has all the propensities of an individual living being in fullness. He marries exactly like us, but his marriage is neither mundane nor limited by our experience in the conditioned state. His wives therefore appear like mundane women, but factually, they are all transcendental liberated souls, perfect manifestations of internal energy. Hare Krishna. Hare Krishna. What a beautiful purport. Look, and this is the beauty of Srila Prabhupada. There is two-line translation, and he gives a purport that will take us, months to even, comprehend what he has written. But we'll give it a go today. So that Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna,
Out of his causeless mercy, he appears in this planet by his own internal potency and enjoyed himself among competent women as if he was engaging in the mundane affairs. ये दो लाइन का है purport, translation. But Srila Prabhupada takes it to a different level. He is talking about what is the purpose of life. He is talking about who God is, what is our relationship with God, and basically the whole Bhagavad Gita is in this purport. He talks about everything, like what is the way to understand God and all those sort of things. So today we're gonna try and break it down as much as possible. What is Srila Prabhupada trying to say here? So this verse is very special because in our eyes we have had so many issues. हमें लगता है कि when people talk about God, they have so many misconceptions about Krishna. फिर देर इज ए लोकोक्ति जो लोग यूज करते हैं विच इज कॉल्ड हम करें तो नहीं कृष्ण करे तो कृष्ण लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है ना दैट्स व्हाट दे से बट हाउ स्टूपिड इज दैट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट कृष्ण लीला मीन्स है ना सो वी कैन ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वर्स इज इट टॉक्स अबाउट how people have misunderstood his pastime as Lord Krishna, how people have misunderstood his Ras Leela, how people have misunderstood his household life, you know, and it actually tells us that even though he is walking on the same flow, on the same earth that we are walking right now, he was still at that time, he was still God. He was not like a human being. His behavior is not ordinary behavior. His behavior is transcendental. है ना? And the objective of today is to understand few things. One is why he descended, है ना? What is the meaning of his householder life? And हमारी spiritual journey में how would it apply? ठीक है? So, तो शीला प्रभुपाद से यहाँ पर लिखा है Swamin. Where is it? So I'm gonna read this. Can you guys see Bhagavad Gita 4.7? Yes, Yes, Prabhuji. sir. Yes, sir. Okay. So now भगवान क्यों आए यहाँ पर यदा यदा ही धर्म से हमको सबको पता है ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम सो जब भी धर्म की ग्लानि होती है जब जब धर्म नीचे गिरा है भगवान आते हैं क्या करने के लिए दो चीजों के लिए अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम सो क्या करते हैं प्रिडोमिनेटली रिलीजन को वापस लाने के लिए है ना धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं हाँ ये जो चीज है धर्म की स्थापना ये भगवान का एक नॉट रियल मोटिव है यहाँ आने का रियल मोटिव ये नहीं है रियल मोटिव भगवान का क्या होता है कि वो आएंगे और अपने भक्तों के साथ समय व्यतीत करेंगे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड सो दैट ही कैन डू सम पास टाइम्स है ना कुछ कुछ लीला करेंगे उस लीला से क्या होगा हम लोग हमारे जैसे कंडीशन सोल जो नेटफ्लिक्स के भूखे प्यासे हैं है ना हम लोगों को क्या लगेगा कि यार क्योंकि हमने मजे लेने का शौक है हमें तो हमको क्या लगता है यार मजा आना चाहिए तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मजे लेने वाला पास टाइम करता हूँ फिर हम उनकी स्टोरीज सुनते हैं हम कंडीशन सोल्ड हैं और थोड़ा सा हम अगर उनकी लीलाओं में अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा क्योंकि हम भगवान के नाम में भगवान की लीलाओं में और भगवान में कोई अंतर नहीं है तो जब हम उनकी लीलाओं को सुनेंगे तो हमारा अपने आप प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा फिर हमें ये समझ में आने लग जाएगा कि हम कौन है हमारा पर्पस क्या है और हम लोगों को कैसे उस पर्पस के पास जाना है ठीक है ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी ठीक है तो यदा यदा ही धर्मसि ही डिसेंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटी एंड एनहाइलेट डीमंस है ना दो काम के लिए आता है ना बट असली काम क्या है उनका ही वांट्स टू स्पेंड टाइम विद डिवोटी ही वांट्स टू कम एंड गिव प्लेजर टू द डिवोटीज एट दैट टाइम
एंड डिवोटीज नाउ, जैसे अभी भी जो काफी सारे डिवोटीज हैं, दे relish भगवान। अब देखो गोवर्धन लीला है, गोवर्धन लीला हजारों बार हम लोगों ने सुन रखी है। गोवर्धन लीला में कुछ नहीं है, भगवान ने गोवर्धन उठाया छोटी उंगली में, है ना, और काफी दिनों तक खड़े रहे गोवर्धन उठा के। नाउ दैट इज, अभी भी गोवर्धन लीला जब बताते हैं, वी relish इट। एवरीबडी हैज अपना अपना तरीका बताने का। क्यों हमें पसंद आती है? बिकॉज दैट इज द ओनली प्लेस वेयर ट्रू हैप्पीनेस इज। ट्रू हैप्पीनेस का मतलब होता है, हम लोग क्या है, वी आर फिश आउट ऑफ वाटर। अगर एक मछली पानी से निकल गई है, बाहर निकल गई है ना, तो उसको आप कुछ भी दे दो, जलेबी दे दो, बर्फी दे दो, काजू कतली दे दो, है ना, डोसा सांभर दे दो, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पानी चाहिए, है ना। आप बोलो नहीं 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 नहीं, मेरे को पानी से क्या करोगे, एक काम करो, तुम दूध पियो। अब मछली दूध नहीं चाहिए, मछली को सिर्फ पानी चाहिए, पानी में रहना है उसको। तो हमारे साथ क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम लोग मछली हैं। हम लोग भगवान के साथ थे, हम खुश थे। भगवान को छोड़ के हम यहाँ आ गए हैं, और हम लोग क्या सोच रहे हैं, लेट्स गो टू बाली, थोड़ा सा शायद मजा आ जाए। लेट्स गेट मैरिड, थोड़ा सा शायद मजा आ जाए। लेट्स गेट ए गुड जॉब, शायद थोड़ा सा मजा आ जाए। लेट्स गेट चाइल्ड, शायद थोड़ा मजा आ जाए। चलो ठीक है, लेट्स डू सम, बाय एक्सपेंसिव हाउसेस, मजा आ जाए। लेट्स बाय एक्सपेंसिव कार, शायद मजा आ जाए, है ना। लेट्स गेट ए नेम, फेम, एडोरेशन, शायद मजा आ जाए, है ना। लेकिन वी फॉरगेट दैट वी आर फिश आउट ऑफ वाटर। द ओनली प्लेस वी विल एक्चुअली हैव हैप्पीनेस इज व्हेन वी आर विद गॉड, है ना। अब उसके लिए, भगवान के पास जाने के लिए वी नीड टू बी प्योरिफाइड, भगवान के साथ गुजारने के लिए वी नीड टू बी प्योरिफाइड ऑफ आवर डिजायर्स, है ना। और भगवान क्या करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, उन्होंने सबसे पहले तो सारे धर्म ग्रंथ भेज दिए। लेकिन धर्म ग्रंथ हमें पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, हमारे पास टाइम है नहीं, है ना। कलयुग में मंद सुमंद मत हो, फिर उसमें हमारे को प्रॉब्लम है। तो हम, भगवान ने क्या बोला, अच्छा एक काम करता हूँ, वेद पढ़ने का टाइम नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ खुद ही। उसके फिर वहां पर महाभारत लिखी जाएगी, उस स्टोरी की तरह पढ़ना, मजा आएगा। और फिर हम लोग स्टोरी की तरह पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने टीवी सीरीज बना दी, फिर लोगों ने उसको भी काफी सारी देखा। लेकिन प्योरिफिकेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना। लेकिन आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि दिस फिश लाइक अस, वी नीड टू गो बैक टू वाटर विच इज लॉर्ड हिमसेल्फ। वरना हम कुछ भी कर लेंगे, है ना, कुछ नहीं होता, है ना। दैट्स वन पॉइंट। फिर शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि देर इज ए वर्स इन भगवत गीता, लेट मी क्विकली फाइंड इट आउट। इट सेज, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म कर्म, ये जन्म कर्म चमे विद्यम, दिव्यम एवं यवोति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सौर्जुना। भगवान कहते हैं भगवत गीता 4.9 में, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म है वो क्या है, दिव्यम, है ना। फिर एवं यो वेति तत्वता, जो ये बात को समझता है ना, जो जानता है इस बात को, तत्वता, तत्व का मतलब होता है रियलिटी में, जो इस बात को जानता है रियलिटी में, त्यक्ता देहम, जब वो अपनी देह त्यागता है, देह को त्यक्त्वा देहम, पुनर्जन्म न इति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, माँ में मेरे पास आता है। सो अर्जुन, अर्जुन को बता रहे हैं वो, जो ये समझ जाता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और उसको ट्रूली समझता है, जो जो इस बात को, वो दोबारा इसमें यहाँ आता ही नहीं है एक बार मरने के बाद। भगवान खुद कह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग इट, भगवान खुद ही कह रहे हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, हमें लगता है नहीं नहीं, भगवान ने भी तो शादी करी, भगवान ने 16,108 रानियों से शादी करी, मेरे पास तो एक ही गर्लफ्रेंड है, और दो ही गर्लफ्रेंड है, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं लोग, है ना। लोगों को लगता है, बिकॉज we are looking at Krishna's pastime as mundane affairs. It's not mundane affair, है ना। अब अब क्या होता है, जब अब किसी ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी करी थी, तो मैं दो शादी क्यों नहीं कर सकता? तो उसके लिए सिंपल सा आंसर ये है, हाँ कर सकते हो आप। अगर आपको करना है आप करो, दो शादी करो, तीन करो, 10 करो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप भगवान कृष्णा के पद चिन्हों पे चलना चाहते हो, है ना, तो आप करो। लेकिन जैसा उन्होंने रखा अपनी बीवियों को, वैसा रखो। जब वो 16,108 बीवियों के साथ थे, सो ही डिवाइडेड हिमसेल्फ इनटू 16,108 फॉर्म्स। सो हर एक रानी के साथ
वो एक ही समय पे सारी रानियों के साथ होते थे, अलग अलग महल में। उनके लिए 16,108 महल थे, 16,108 रानियां थी। वो 16,108 में डिवाइड हो गए थे, और सब जगह थे। जो जो उनकी वाइफ लंबी थी तो भगवान भी लंबे हो गए, जो छोटी थी भगवान भी छोटे हो गए, जो मोटी थी भगवान भी मोटे हो गए, है ना। तो भगवान ने अकॉर्डिंग टू द वाइफ, अकॉर्डिंग टू दैट वाइफ, भगवान ने उनका जैसा रूप करा। फिर भगवान ने उनको फुल अटेंशन दी, है ना। भगवान स्टेड देयर एज ए गृहस्था, एंड ही वॉज लुकिंग आफ्टर हिज वाइफ्स। ऐसा नहीं वहां पर बैठ के बोले, "हे, पैर दबाओ मेरे, है ना, और चाय बना के लाओ"। भगवान ये नहीं कर रहे थे। भगवान वॉज टेकिंग केयर ऑफ किड्स, है ना, यू नो। डायपर तो नहीं होते थे, बट ही वॉज चेंजिंग देम, ही वॉज क्लीनिंग देम। उनको नहलाते थे भगवान, उन घर का काम भी करते थे, सफाई वफाई में हाथ भी बटाते थे। एंड ही इज अ लॉर्ड हिमसेल्फ, ही इज नॉट द लॉर्ड ऑफ material world, he is lord of the universe, and he was lord of spiritual world and material world both. He was doing all of this. So instead of trying to pretend to be Krishna, है ना, and try to do भगवान की भगवान की अ, लीलाओं की आड़ में आप अपना इंद्रिय तृप्ति करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट गोना हेल्प, बिकॉज इट सेज his competent wives is so therefore the Lord living as a householder among his competent wives is never mundane, and his behavior with them is never to be understood as mundane sex relation. लोगों को लगता है कि 16,108 रानियों के साथ है तो that's all he's doing, but he's showing us through his activities with these women how to be a great husband, है ना। लेकिन आप देखो, आई एम गोना गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। there is a verse in Bhagavad Gita where it says that men are more qualified. Men are usually in Satyuga, men were more qualified to go back to Godhead. So if someone wanted to go back to Godhead, they used to pray to become a male in the next birth so that they can go back to God. That means it'll be easier for them to go back to Godhead. ऐसा होता था। लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, है ना। नॉट नॉट ट्रू एनी मोर, बिकॉज क्या हो गया है अभी। मेन, अभी आप अपनी क्लास में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। हाउ मेनी मेल आर इन देयर? प्रभु जी से वैसे तो सारी वुमन ही है ना। नहीं, वैसे तो सारी वुमेन, मैं भी अभी बता रहा हूँ, कई लोग कहते हैं ना विमेन बॉडी में। अभी देखो, हु इज मोर इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंस इज व्हेन यू आर लुकिंग एट द हायर गोल एंड लेटिंग गो ऑफ द लोअर थिंग्स। Right now, I don't know, I'm not gonna comment on anyone, but why there are no men in this class except for Mithul Prabhu? Because Mithul Prabhu is serious, but rest are women are more intelligent. Simple as that. Because what is intelligence? Intelligence means कि यार, I have a resource, how can I use that resource how can I make the optimum use of this resource? What can I do in the case of this to get the best out of the bad bargain that I've been given? प्रभु, प्रभु मैं भी हूँ। कौन बोला? अच्छा, मैं आपकी बोला बात है। प्रभु। क्या हरि बात बोल है प्रभु। प्रभु! ऐसे आपकी आपने आवाज देखो, आपकी आवाज आपने सुन ईगो गई पे है ऐड किया यार। प्रभु। आपकी आवाज सुन हरि गई बोल। है। तो देर आर हरि टू बोल। टू इंटेलिजेंट पीपल, नहीं टू नहीं, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट भी मैन, थी, बट इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन मैंने ऐसे बोला। मित्र बाबू अकेला दिल लग रहे। so the reason what I'm saying is because intelligence is intelligence only means what can I do to get the most out of whatever has been dealt to me, है ना। अभी क्या है, that's why women in Kali Yuga, this is the reason why spirituality में you see women are a little bit more serious than men, है ना। Even though sannyasis are all male, but the seriousness that you see in the temple, the seriousness that you see in the female, the reason is because women are considered to be more emotionally intelligent. And because they are more emotionally intelligent, what happens is they understand, they can feel the Lord's, they can feel that, what, Lord is there, is giving us instruction, and they understand it better. Men के साथ क्या होता है, they are practical. जो दिखता है वो बिकता है,
हाँ कृष्णा इज देयर, बट ही नोज, मैं उनको याद तो करता ही रहता हूँ ना, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंट बंदा होगा वो क्या करेगा, वो कहेगा नो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई दिस। आई एम वेरी यूजिंग वेरी मंडेन एग्जाम्पल, बट दिस इज द ओनली वे इट मेक्स सेंस टू मी समटाइम्स व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ किसी को कि प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड चैंट द होली नेम, एक राउंड विच टेक्स अराउंड 7 मिनट्स, तो बोलेगा प्रभु सुबह सुबह टाइम नहीं है ना। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है प्रभु, 7 मिनट है, कभी भी कर लो, गाड़ी चलाते चलाते कर लो, माला मत लो हाथ में, स्टेयरिंग पे दोनों हाथ रखो, बट जब आप ऑफिस से घर जा रहे हो 10 मिनट का अलार्म लगा लो, 10 मिनट तक सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, फ्री हो जाता है, और अगर उनको बोल दो कि 2 घंटे चैंटिंग करनी है, तो बोलेंगे यार प्रभु यार 2 घंटे कहाँ से निकालूं, किसके पास है 2 घंटे। ठीक है, अगर मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा फ्लिप कर देता हूं, मैं कहता हूं प्रभु, फॉर एवरी हरे कृष्णा महामंत्र यू विल गेट पेड $10। एवरी हरे कृष्णा महामंत्र यू गेट $10। दैट मीन्स सेव मतलब एक राउंड करते हैं, मतलब विच इज 108 है ना, 108 मतलब 7 मिनट्स में यू विल गेट कितना कितना मिलेगा, 1080। यू विल गेट फॉर एवरी कितना हुआ, 1080, हाँ, $1080 आपको मिलेगा एवरी 7 मिनट्स। आप मुझे बताओ कितने लोग बोलेंगे कि मेरे को नहीं करना है, टाइम नहीं है। बल्कि लोग क्या करेंगे, यार मेरे को टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट में भी बैठ के कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हाथ में माला नहीं है लेकिन हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। किसी से बात कर रहे हैं तो वो जब तक अपनी बात बता रहा है मन में हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, क्योंकि वो टिंग टिंग पैसा आता हुआ दिख रहा है ना। तो मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं आपको एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या हरि नाम की कीमत ₹10 है क्या, $10 है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन हरि नाम? एनीबडी? आई नो इट्स हार्ड क्वेश्चन, बट ऐसे ही बताओ, मतलब जस्ट टू से दैट, लाइक ना $10, मैं तो सिर्फ $10 बोल रहा हूँ। Yes. Prabhu, we can't quantify कोई its वैल्यू नहीं actual. है। Yeah. कुछ कर ही नहीं सकते, वी कांट डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि वन हरे कृष्णा महामंत्र इज इक्वलेंट टू मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ कर्मा वैनिशिंग लाइक दिस। वन मंत्र, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन माला, आई एम टॉकिंग अबाउट वन मंत्र। व्हेन यू से इधर बैठ। हरे कृष्णा, बस ये दो वर्ड भी बोल दो, उसमें भी होता है ना। नाउ इफ आई से वन $10 मिलेंगे आपको, देन पीपल विल लेफ्ट राइट एंड सेंटर से निकाल के लाएंगे टाइम, है ना। क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर भी, आप टेनिस खेलने जा रहे हैं, टेनिस में भी हरे कृष्णा चल रहा है, आप टेनिस भी खेल रहे हो, हरे कृष्णा भी चल रहा है ना। आप कुछ भी कर रहे हो, हरे कृष्णा चल रहा है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, वी आर प्रैक्टिकल मेन, स्पेशली मेन, वी आर प्रैक्टिकल, है ना, मोर प्रैक्टिकल, आई मीन नॉट ऑलवेज बट कंसिडर टू बी मोर प्रैक्टिकल। बट क्या होता है, देन वी सॉ, ओ व्हाट, but practicality is one of the worst thing, like being practical is not always a great idea, है ना। practicality का मतलब क्या होता है, we are actually restricting ourselves। क्योंकि क्या होता है, there are not everything you can learn practically, and I was talking to, I think, Richa Mataji today, about E is equal to mc square, है ना। E is equal to mc square, E का आप लोगों को पता ना, E का मतलब, E है, E is energy, is equal to mass of any object times it by c square. C is the speed of light. 3 into 3, what is the speed of light? 3 into 10 to the power 9. Eight, eight, 3 eight. into 10 to the Three power into 8. 10 to 8 10 meter per to the second. power 8. So 3 into That's 10 right. to the power 8 is 1. Ab now you times it by another 10, 10 in 3 into 10 to the power 8 से वापस मल्टीप्लाई करो। उसको जब आप मास से मल्टीप्लाई करते हो उतनी एनर्जी है। दैट मीन्स अगर मैं, ये बॉटल का ढक्कन है, इस बॉटल के ढक्कन को अगर मैं पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, आई कैन एक्चुअली ब्लो अप द होल अर्थ। अब कोई बोलेगा ऐसे तो हम कर ही सकते हैं, जैसे मैं इसको जलाता हूं, ठीक है, इफ आई बर्न इट, इट विल रिलीज फ्यू थिंग्स, इट विल रिलीज सम गैसेस, इट विल रिलीज सम लाइट, इट विल रिलीज सम हीट, एंड इट विल स्टिल हैव अ रेजिड्यू, राख, है ना, राख भी होगी। इसका मतलब
इसका वेरी स्मॉल पार्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, बाकी सारा तो रेजिड्यू रह जाता है। लेकिन अगर मैं इस पूरी की पूरी कैप को पूरी की पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, इट कैन डिस्ट्रॉय द होल अर्थ। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। और पूरी की पूरी जो मैथ्स फिजिक्स पूरी की पूरी साइंस है इस पे बेस्ड है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन, वी कांट इवन प्रैक्टिकली कैलकुलेट इट, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं, है ना। तो हमारी जो लाइफ की बेसिक, प्रैक्टिकल लाइफ की बेसिक बेसिक जो ब्रिक है वही इमेजिनेटिव है, मतलब उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो लेकिन जब भक्ति की बात होती है तो लोगों को प्रूफ चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं है, प्रूफ है। अब जैसे मैंने किसी को बोला कि आई गॉट अ सीड, अगर ये एक सीड है मेरे हाथ में, मैं आपको बोलूंगा कि इस सीड के अंदर पूरा अमरूद का पेड़ है ना। अगर मैं नारायण को बोलूंगा, नारायण दिस सीड हैज गॉट अ होल ट्री इनसाइड, नारायण बोलेगा क्या यार, ये इतना छोटा ट्री तो बड़ा होता है, ये तो इतना छोटा है। तो मैं बोलूंगा उसको कि बेटा इसमें पोटेंशियल है ट्री का, ट्री इसके अंदर ही है, लेकिन वो कैसे बाहर आएगा? यू हैव टू पुट दैट सीड इन द सोइल, यू कवर इट अप विथ प्रॉपर, उसमें खाद डालो, उसमें पानी दो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू वेट, यू कीप डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू एंड कीप वेटिंग। अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने नारायण को बोला, नारायण इसके अंदर वो है, ट्री है, आप इसको जब जमीन में डाल दोगे इसमें से ट्री निकलेगा। अब नारायण को मैंने बीज दिया, उसने डाल दिया, सुबह उठ के आया, बोले पापा इसमें तो ट्री निकला ही नहीं, उसने खोद के वापस निकाल लिया, बोले पापा ये देखो इसमें से ट्री निकला ही नहीं। फिर वो रोज उसको अगर खोद के बाहर निकाल देगा, उसमें कभी भी ट्री नहीं निकलेगा, है ना। सो अब इस केस में व्हाट इज प्रैक्टिकलिटी? प्रैक्टिकलिटी मीन्स नाउ you have done, first you do your work and then you do whatever is required and then you wait। लेकिन हमें क्या चाहिए? we live in an instant gratification environment, हमें अभी के अभी चाहिए। अभी मेरे को कुछ देखना है, आई वांट नेटफ्लिक्स। अभी के अभी मेरे को किसी से बात करनी है, आई वांट माय फोन। अभी के अभी मेरे को किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, ये लो, है ना। अब किसी को बोलो कि तू मुझे पहले क्या होता था, हम लोग किसी को बोलते थे ना कि यार आई मीट यू एट दिस स्टेशन ऑन दिस डेट, तो फोन नहीं होते थे तब, तो हम लोग उस डेट पे उस समय पहुंच जाते थे वहां पर, है ना। लेकिन अभी क्या है, यार कितनी दूर है? 5 मिनट दूर हूँ। थोड़ी देर बाद कितनी दूर है? 2 मिनट दूर हूँ। कितनी दूर है? अरे 1 मिनट दूर हूँ। मतलब हम लोगों को क्या है, अभी के अभी सब कुछ चाहिए। तो हमने आज बीज डाला है तो कल हमें पेड़ चाहिए, और नहीं मिलेगा तो बीज में पेड़ है ही नहीं। Beach does not have capacity for paid. How stupid is that? How can you even comprehend कि a seed does not have a tree just because it's not following your timeline, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, एवरीथिंग लाइक मैंने से हम लोग, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि वी थिंक दैट भगवान को समझने के लिए वी नीड प्रैक्टिकलिटी। अरे हम लोग पूरी हमारी लाइफ में प्योर प्रैक्टिकलिटी के थ्रू, प्योर प्रैक्टिकलिटी के साथ हम पूरी लाइफ ही नहीं जी सकते। हाँ, हर चीज हमारे में कुछ ना कुछ हम लोगों को उसमें इमोशन डालना पड़ता है, सारी चीज डालनी पड़ती है, तब जाके उसकी रियलिटी पता चलती है ना। और जो ये जो विमेन थी जिनकी बात हो रही है इसमें हमें क्या लगता है कि यार देखो भगवान कितने मजे कर रहे हैं कि ना, और इतनी सारी विमेन के साथ, बट दीज विमेन आर नॉट ऑर्डिनरी विमेन, बिकॉज भगवान दे देर इज ए वर्स इन भगवत गीता, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, यदि यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस तरीके से मेरे को सरेंडर करता है, आई गिव देम थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सार्वथा सर्वशा। क्या बोल रहे हैं भगवान? जिस तरीके से तुम मुझे सरेंडर करते हो, एज एग्जैक्टली द वे यू सरेंडर मी, आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली नाउ। और नेक्स्ट लाइन क्या है? माम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। कहते हैं एवरीबडी, जितने भी लोग हैं दे फॉलो माय पाथ, और मनुष्य और सारे के सारे लोग, है ना। मम वर्तमा, वर्तमा का मतलब होता है पाथ, वर्तमा का मतलब होता है पाथ। तो जो हर कोई मेरा, और
अनुवर्तनते का मतलब होता है अनुसरण करना, मतलब पीछे पीछे जाना। और एवरीबडी इज फॉलोइंग माई पाथ रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर। और भगवान कह रहे हैं जो जिस तरीके से मेरे पे प्रपद्यंते का मतलब होता है सरेंडर करता है, जो जिस तरीके से सरेंडर करता है मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ उनके साथ। अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये जो विमेन है, दीज विमेन आर नॉट ऑर्डिनरी विमेन। दे वर लुकिंग एट कृष्णा एज देयर हस्बैंड। they wanted Krishna as their husband, then they had to do millions of lifetimes of austerities, so, and they got qualified because then उससे क्या हुआ, उनका सरेंडर बढ़ता गया। एंड वंस दे सरेंडर रीच द पीक, भगवान ने क्या बोला, अच्छा जिस तरीके से तुमने मुझे सरेंडर करा है मैं तुम्हें उसी तरीके से रिवॉर्ड दूंगा। तुम चाहते हो कि आई बिकम योर हस्बैंड, आई विल बिकम योर हस्बैंड। और अगर किसी को चाहिए, एंड देर इज अनदर वर्स इन भगवत गीता विच सेज, फॉरगॉट द वर्स, जिसमें कहते हैं तेषाम सतति युक्ताम, नो नॉट दैट वन, द अदर वन, जहां पर भगवान कहते हैं कि प्रभु अनन्य चिंतो माम, नो नो नो, ये वेयर भगवान सेज कि यू कैन नॉट इवन फॉरगेट मी, forgetfulness comes from me. What was that verse? प्रभु जी वो सर्वस्य 15 चाहम, पॉइंट, यस प्रभु। सर्वस्य चाहम हृदय हाँ, सन्निविष्टो। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम चा वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान क्या कहते हैं कि सर्वस्य च अहम, सारे जो सारे लोग हैं, सर्वस्य च अहम हृदय हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं बैठा हूं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टे मत्तः स्मृति, मेरे से ही क्या आती है स्मृति, रिमेम्बरेंस। मत्ते स्मृति ज्ञान अपोहनम चा, मेरे से ही रिमेम्बरेंस, नॉलेज, और इवन फॉरगेटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी, है। क्योंकि हमने इससे पहले का वर्ष देख लिया था, जो जैसा सरेंडर करता है भगवान उसको देता है। अब कोई चाहता है कि मेरे को भगवान पे विश्वास नहीं करना है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आपको चाहिए, आप मुझ पे नहीं विश्वास करना चाहते, आई विल गिव यू मेमोरी, आई विल गिव यू reasoning so that you will forget it. Because a person cannot even forget God without the mercy of God. So जो लोग एथियस्ट हैं, they are atheist, that is also been granted by कृष्णा। भगवान कृष्णा की परमिशन के बिना तो भगवान को भूल भी नहीं सकते। सो इफ समवन हैज फॉरगॉटन कृष्णा, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोकेशन ऑफ कृष्णा, बिकॉज यू वांटेड टू फॉरगेट। सो भगवान कहते हैं ठीक है भूल जाओ। तो ये जो विमेन है, दे आर नॉट ऑर्डिनरी विमेन, दे आर लाइक, दे आर एक्चुअली, देर इज क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट श्योर, अगर हम लोगों ने डिस्कस करा है बिफोर। सो व्हेन रामचंद्र जी, व्हेन ही वाज गोइंग टू वनवास विद सीता एंड सीता माँ एंड लक्ष्मण, so what happened is, rishi there are, there were rishis, they were there, there are 16,000 108 rishis there. They looked at Ram, they were like rishi muni। ऋषि मुनि कौन है, they have full control on their इंद्रिया, ठीक है। they looked at Ram and he looked so beautifully amazing, कि उनको लगा कि यार माय गुडनेस, पार्टनर हो तो ऐसा हो, लाइक लाइफ पार्टनर अगर हमें चाहिए तो हमें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। एंड दे वर ऑल मेल, है ना। So they were so enamored, and because they had this thought in their head, and they were surrendered to Lord। एंड भगवान ने क्या बोला यहाँ पर, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितये वे भजामि हम। उन्होंने क्या करा, भगवान ने बोला ठीक है, यू वांट मी एज ए हस्बैंड, आई विल बी योर हस्बैंड, बट दिस, ये वाले रूप में आई हैव डन टेकन वन पत्नी व्रत, आई कांट बी विद यू, बट व्हाट आई विल डू इज, व्हेन आई कम बैक नेक्स्ट टाइम, आई विल मैरी यू guys। and those were the women, they were not ordinary women, they were like transcendental, है ना। सो जो हम लोगों को लगता है कि भगवान करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग। यू कैन नॉट, बिकॉज यू कैन नॉट कंपेयर योर थिंग। हमारा जो मंडेन दिमाग है, भगवान का मंडेन दिमाग नहीं है। हमारे दिमाग में अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का मतलब एक ही होता है, भगवान के दिमाग में वो नहीं है। दैट इज आवर ओन चॉइस, जिसके कारण हम लोगों की इतनी कंडीशनिंग के बाद हम लोगों को हर चीज में एक ही चीज दिखाई देती है ना। दैट्स नॉट व्हाट कृष्णा वांट्स। कृष्णा कृष्णा इज सेइंग इन हियर that
द प्योर डिवोटी, हाँ फिर कृष्णा, हाँ नेक्स्ट में शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? एक सेकेंड। हाँ, so Krishna बोल रहे हैं, when the Lord appears in different lokas or planets on the planet of human beings, he displays his transcendental pastime just to attract the conditioned soul to become his eternal servitors. This is what Srila Prabhupada was saying. This is the main purpose of Krishna. तो कृष्णा का पर्पस नहीं है कि सिर्फ कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, सिर्फ मिसक्रिएंट्स को मारना और धर्म की स्थापना करने नहीं आते हैं. ही एक्चुअली कम टू अट्रैक्ट द कंडीशन सोल्स. And that is why, and how would he attract the servitors, eternal servitors? Like friends, parents, lovers, है ना? Some people want to be friends, some people wants to be parents of God, some people wants to be lovers of God, some people wants to be a fan in the hand of a devotee जो भगवान को पंखा कर रहे हैं. Some people wants to be air, some people wants to be a tree जिसके नीचे भगवान बैठे हैं. So a devotee wanted to be a, what do you call it, a flute. So the flute is a devotee of Lord as well. You know, some people wants to be gopis, some people wants to be gopas, some people wants to be mothers and father. सो भगवान क्या करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजामि. भगवान जैसा आप करो, जैसा आप जितना जिस तरीके का आपका सरेंडर होगा, भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेशन देंगे, है ना. नाउ शिला प्रभुपाद इधर आगे जाते हैं, देन ही सेज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग. ही सेज service is pervertedly represented in material world and broken ultimately resulting in sad experience. अभी क्या है, हम भगवान की सेवा में थे एंड वी वर रियली रियली हैप्पी. Srila Prabhupada, yeah, I don't know whether it was Srila Prabhupada, someone was giving this example. One day, what happened is, हमारा जो इट्स ए स्टोरी, जस्ट एलेगोरिकल स्टोरी. उसमें क्या होता है, दिस गाय, दिस, हमारा जो हाथ होता है ना, हाथ हाथ आपस में हाथ और सारे के सारे जो अपने शरीर के अंग होते हैं बात कर रहे होते हैं आपस में. हाथ कहता है, यार ये क्या है यार, इतनी मेहनत से हम लोग खाना बनाते हैं और फिर खाना ले जाते हैं, खाना हमें तो कुछ मिलता नहीं है, मुंह कुछ मुंह मुंह खा लेता है सब कुछ. तो मुंह बोलता है, यार मैं थोड़ी खाता हूँ, तो दांत के पास जाता है, मैं नहीं खाता हूँ. फिर दांत के पास जाता है, अच्छा तू दांत कहता है मैं भी कुछ नहीं खाता हूँ यार, मैं तो सिर्फ चबाता हूँ, टेस्ट तो सारा जबान पे आता है. अब वो जबान कहती है, नहीं मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो जो लिक्विड चाहिए होता है पेट में डाइजेस्ट करने के लिए वो तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन खाना तो अल्टीमेटली पेट में जाता है. तो अल्टीमेटली इन लोगों को सबको समझ में आ जाता है कि यार ये काम हम सारा कर रहे हैं लेकिन सब कुछ मिल पेट को ही रहा है. तो उन्होंने बोला, अब हम हड़ताल कर देते, विल नॉट गना फीड एनीथिंग. अब बोले, अगर पेट को बोलते हैं, तुम्हें तुम्हें चाहिए ना खाना, तुम खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ. अब पेट कैसे बनाएगा खाना? फिर धीरे 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 क्या होता है, अब वो खाना छोड़ देते हैं. जैसे जैसे बॉडी कमजोर होती है, जैसे जैसे पेट में खाना नहीं जाता है, तो शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ भी कमजोर हो जाता है, मुंह भी नहीं चलता है ना, और सारे के सारे हमारे अंग खराब खराब होने लग जाते हैं. एंड देन somebody comes and tells him, बेवकूफों, तुम्हारे पास जो एनर्जी आ रही है ना, वो पेट में खाना डालने से ही आ रही है. तो ये जो तुम पेट को खाना खिला रहे हो अल्टीमेटली तुम्हारे पास ही आ रहा है. तो फिर उन्होंने, तब उनको समझ में आया कि अगर हम पेट को खाना खिलाना बंद कर देंगे तो हम भी मर जाएंगे. ठीक है, अब ये पेट जो है, दिस इज कृष्णा, है ना. हमें क्या लगता है कि नहीं यार, ये सारा कुछ मैं कैसे दे दूं, भगवान को कैसे दे दूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कैसे, अरे नहीं सारा तेरे को कैसे अर्पण कर दूं, मेरा है, मेहनत से कमाया है, खून पसीने की कमाई है, मैं कैसे दे दूं आपको भगवान. तो भगवान कहते हैं, बेटा तू जब तक तू मेरी सर्विस, until you serve me, you will never be happy, because you are like hand, mouth, दांत, जीभ, सब कुछ. If you are like that, the only way you will get portion is when you feed me, when you look at me. Y- यत जोहोशी यत अश्नाशी, यत यत जोहोशी ददाशी, यत यत तपस्यसी, कौन से है, तद कुरुष मद अर्पणम. जो करना है मुझे दो, है ना. एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड. Sorry. Tad Kurush Madarpanam. So this story, this allegorical story tells us our actual position. Our actual position is to serve.
है ना, हमारा जो हाथ है, इट हैज फॉरगॉटन दैट इट इज supposed to serve, because that's the only way these hands and everything can get nourished. तो हमें क्या करना है अल्टीमेटली, if we give whatever we receive, whatever these hands receive, if they put it in the stomach, they will get nourished. ये बात समझ में आ गई अगर हम लोगों को materially, then we can understand the only way we can survive is, we can actually be happy is, if we try and make Krishna happy, because we get nourishment from the happiness of Krishna. And here it says the service is pervertedly represented in the material world and broken untimely, resulting in sad experience. अभी क्या है, हमें क्या लगता है कि हम लोग इल्यूजन है, ठीक है, हमें क्या लगता है, सेवा तो मुझे नहीं करनी, मतलब अरे नौकर, क्या बात कर रहे हो, नौकर थोड़ी हूं मैं तुम्हारा, नौकर, तुमने मुझे नौकर बोल दिया. There was a time when one of a very senior disciple of Srila Prabhupada giving a lecture on देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, है ना, ये वाला वर्ड्स पे लेक्चर दे रहे थे. तो उन्होंने बोल दिया कि दुर्गा माँ जो है, शी इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा. दिस guy वो got up and say, how dare you called my Durga my servant, she is nobody's servant, and he just walked off, है ना. Now this is a perverted understanding of service, because service does not make you smaller. अगर देवी माँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, that doesn't make देवी माँ smaller. She is an amazing devotee of Krishna, amazing devotee. She's got a thankless job of keeping the miscreants in this material world trapped and push them towards purification, है ना. तो बट जो लोग, द पीपल हु आर मंद बुद्धि, उनको क्या लगता है, सर्वेंट का मतलब होता है, नौकर का मतलब होता है नीचे वाला दर्जा. भगवान कृष्णा श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त का, मैं अपने भक्त के नीचे हूं. आई एम लोअर देन माई डिवोटीज, मैं उनके पराधीन हूं, मतलब मैं उनका सर्वेंट हूं, है ना. सर्विस इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग थिंग इन द वर्ल्ड. आप देख लो, the most, if you are always taking from people, you may enjoy a big good meal, you may enjoy a foreign trip, you may enjoy something material here and there, but मन का satisfaction तब आता है when you help someone, when you serve someone, when you are actually adding value to someone else, and that feeling gives me happiness, because जीवेरे स्वरूप होए कृष्णे रे नित्य दास, हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है, it is of a servant. When we act as a servant, then we become nourished, then we become happy, then we are like fish in the water, है ना. But the illusion living being conditioned by material nature cannot understand. और क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, है ना. किस चीज का इग्नोरेंस, इग्नोरेंस अबाउट हु वी आर, हु गॉड इज, व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद हिम, है ना. और हम लोग क्या समझते हैं, हम भगवान की जो रिलेशनशिप है उनको वर्ल्ड के टेम्पररी रिलेशनशिप से कंपेयर करने लग जाते हैं, है ना. वी एक्चुअली we think that all our relations here in the mundane world are temporary and full of inabilities. हमें पता है ये, है ना, but we can't understand it, we cannot understand this, that our relation here is temporary and full of inabilities. कहते हैं ना, when you are going through a very bad time, you will know who your friends are, but the new knowledge is, you never know who your friends are. There is only one real friend, who is Krishna. Everyone else are called fallible soldiers, है ना. fallible soldiers मतलब one day they will fall. There is only one soldier who has never left us. जब हम कीड़े मकोड़े बन रहे थे, जब हम गंदी नाली के कीड़े बने थे, जब हम अलग अलग योनियों में थे, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े ये सब बन रहे थे, उसमें भी भगवान ने हमें कभी नहीं छोड़ा. ही स्टेड विद अस एज परमात्मा, because he looks at us
individually as his own son and daughter. नाउ हमारे जो रिलेशनशिप वर्ल्डली दे कैन नॉट हेल्प अस हैप्पी हैप्पी परपेचुअली, ये हमने देखा है ना। मैंने बताया था ना, देर इज ए मूवी कॉल्ड रोजा, रोजा, डू यू गाइस रिमेम्बर रोजा मूवी, रोजा, मनीषा कोइराला एंड आई कांट रिमेम्बर द नेम, बट देयर वाज अ म्यूजिक बाय ए आर रहमान। एनीबॉडी नोज दैट मूवी रोजा? यस 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 प्रभु। प्रभु जी। मधु, मधु was the अरविंद hero. स्वामी था प्रभु। Yes, yes, Arvind Swamy. So that movie, when that movie came, I remember उसी समय मैंने Walkman खरीदा था, and Walkman में I had that, I bought this movie, this cassette, and I used to listen to that song. I will start in the morning and all day, जो भी मेरे पास 5 मिनट का भी टाइम है ना, उसमें रिचार्जेबल बैटरी, 2 बैटरी चार्ज हो रही हैं, 2 अंदर डाल रखी हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली लिसन टू इट। आफ्टर 1 मंथ आई स्टार्टेड हेटिंग दैट सॉन्ग्स बिकॉज कितना सुनोगे भैया, कितना सुनोगे। आई थॉट ए आर रहमान कैन कीप मी हैप्पी परपेचुअली, बट कैन ही? नो, ही कांट, बिकॉज ही इज ए आर रहमान, लाइक यू नो, ही इज that thing that cannot help us anything which is material cannot help make us happy perpetually, but श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं? If the same relation is established with the Lord, then we are transferred to the transcendental world after leaving this material body. And then we become eternally related with Him in the relation we desire. जैसा भी हमारी ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो हमारी इच्छा हो। अगर हम भंवरा बनना चाहते हैं भगवान के लिए, है ना, सॉन्ग भंवरे के रूप में गाना चाहते हैं, वी विल बिकम अ भंवरा। इफ यू वांट टू बी अ ब्लेड ऑफ ग्रास, वी विल बी अ ब्लेड ऑफ ग्रास। वट एवर वे वी वांट टू सर्व कृष्णा, कृष्णा रेस्पेक्ट्स दैट। सो these women who are living with, they were eternally related with him as transcendental wives, a position which they attained by perfection of devotional service. So they got that because they wanted to be a wife of Lord, and they deserved it because they attained that perfection. And that is their competency. They were not ordinary women. That's, है ना। नाउ यहाँ पर इसके बाद शिला प्रभुपाद कंप्लीटली डिफरेंट टर्न लेते हैं और कहते हैं ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट परम ब्रह्मा। परम ब्रह्म मतलब क्या होता है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। अब क्या होता है, हम लोगों को क्या लगता है कि कि यहां पर नहीं मिलेगी मुझे, तो कई बार लोग कहते हैं ना, भाई आप somebody passed away, जैसे स्वर्गवासी हो गए, वो तो स्वर्ग को चले गए। अब उनको क्या लगता है स्वर्ग इज हेवन, बट जिस स्वर्ग की ये बात कर रहे हैं, स्वर्ग का मतलब है वो परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्परेरी है, लेकिन यहां से अच्छी फैसिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर रह रहे थे तो काल कोठरी है ये, और वहां पर मेलबर्न के जैसे जेल होते हैं वैसा जेल है। उसमें क्या है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, फूड कोर्ट भी है, स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है ना, और ऑडिटोरियम भी है, सिनेमा रूम भी है ना, और सारी चीज, सारी फैसिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि यू आर स्टिल पिंजरा ही है, मतलब बड़ा पिंजरा है, अच्छा वाला पिंजरा है ना। सो जब हम लोगों को लगता है कि नहीं यार यहाँ पर नहीं चल रहा है यार, बाहर यहाँ पर इंजॉयमेंट नहीं है, तो कहाँ जाए? लेट्स गो टू स्वर्ग। स्वर्ग में भी इंजॉयमेंट नहीं है भैया, परपेचुअल इंजॉयमेंट वहां पर भी नहीं है। आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ऊपर वाला लोक है ब्रह्मलोक। एंड आफ्टर दैट वहां पर भी, वो भी 100 साल ब्रह्मा के खत्म होते तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा का पूरा ग्रह, है ना। तो even that is temporary. What does that mean? There is no eternal happiness in this material world. For that we have to गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, है ना। अब शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं यहाँ पर? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज बाइंडिंग अपॉन हिम लाइक ए शैकल ऑफ प्रिजनर। जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस में, उनको क्या चाहिए होता है? एस्केप वेलोसिटी। अगर आपके पास एस्केप वेलोसिटी नहीं है तो वापस नीचे आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी से जाना पड़ता है आपको, है ना। उस एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी सी भी वेलोसिटी कम हो तो यू कैन नॉट क्लियर द एटमोस्फियर, है ना। तो उसके लिए क्या करना होता है? अगर नीचे का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उनको, उस ग्रेविट तो उनकी उसकी एक्सेलरेशन इतनी होनी चाहिए कि नीचे जो एक्सेलरेशन लग रहा है विच इज जी, है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो जो नीचे जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उससे ज्यादा
एक्सेलरेशन ऊपर होगा तभी आपके पास एस्केप वेलोसिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर नीचे जितना जितना नीचे पुल लग रहा है उतना ही ऊपर लगेगा तो वो चीज वहीं खड़ी रहेगी, ऊपर तो जाएगी नहीं, है ना। तो क्या करना पड़ता है नाउ, इफ इन ऑर्डर फॉर अस टू गेट आउट ऑफ दिस material world, we need to have a escape velocity. And the escape velocity is what? Escape velocity is हरिनाम, है ना। अगर हम हरिनाम करेंगे, चैंटिंग करेंगे, इफ वी चैंट एवरी सिंगल डे, इफ वी कीप चैंटिंग एवरी डे एंड कीप chanting better, keep having an intention to chant better every day, that process will get you to escape velocity one day, and one day you will be out of this place. कई बार लगता है ब्रह्मानंद, आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का मतलब होता है जो ब्रह्मन है, भगवान को समझने के तीन तीन तरीके हैं, तीन लेवल पे उनको समझा जा सकता है। पहला लेवल है ब्रह्मन लेवल, जिसमें भगवान को क्या बोला जाता है, भगवान ब्रह्म ज्योति है। और अगर हम उसमें विलीन हो जाएंगे तो हमारी सारी मिजरीज खत्म हो जाएंगी, विच इज ट्रू, देर विल बी नो मिजरी ओवर देयर। लेकिन ब्रह्मन ब्रह्मन में क्या है, आपकी सारी मिजरी खत्म हो गई, एकदम शांति है वहां पर। लेकिन एक बार क्या होता है, वहां पर शांति है लेकिन वहां पर ब्लिस नहीं है। ब्लिस क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लिस जो है, हमने क्या बोला था, हमारा जीव का स्वरूप क्या है, वी आर सर्वेंट्स। वी आर सर्वेंट्स, आर हमारा जो एक्चुअल ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है वो है सर्वेंट की। हम उसके अलावा कुछ भी बनेंगे ना तो हम लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तो हम लोग जब वो भ्रमण में विलीन हो गए तो हमने क्या करा, अब हमें बड़ा, हमें कोई दुख नहीं है ना। और लेकिन हमें मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है, हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। अब भ्रमण का मतलब आप ब्रह्म ज्योति में मिल गए, तो आप किसकी सेवा करोगे और कैसे सेवा करोगे? अब भगवान, अब ब्रह्म ज्योति में मैं भी विलीन हूँ, भगवान भी ब्रह्म ज्योति है, तो मैं बोलूंगा भगवान मैं आपके पैर दबाऊं, लेकिन कहाँ है भगवान के पैर, कहाँ है? पैर भी नहीं दबा सकता। भगवान पानी पियोगे, पानी कैसे पिलाऊं? पानी भी कुछ नहीं है, भगवान भी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। हाउ कैन आई सर्व द लॉर्ड व्हेन आई एम विलीन इन ब्रह्मन? सो ब्रह्मन रियलाइजेशन इज ए वेरी स्मॉल, लाइक इट्स ए वेरी बेसिक रियलाइजेशन। उसके बाद रियलाइजेशन आता है परमात्मा रियलाइजेशन। परमात्मा रियलाइजेशन क्या होता है? व्हेन यू अंडरस्टैंड द ब्रह्म ज्योति है ना, इसका कोई ना कोई सोर्स है, कोई ना कोई कोई कहीं ना कहीं इसका सोर्स है। अब वो जो सोर्स है वो सर्वव्यापी है, एंड वो है परमात्मा। परमात्मा इज द सोर्स ऑफ ब्रह्म ज्योति, एंड दैट्स द सेकंड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन, which is the highest realization, is called Bhagwan realization, where we say Bhagwan is a person. he is not he is not निराकार। उनके पास कोई मटेरियल आकार नहीं है, लेकिन वो निराकार नहीं है। बाइबल में, कुरान में, हमारे सारे जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर, सब में लिखा है गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज। दैट मीन्स गॉड का जो स्पिरिचुअल फॉर्म है, उसके उनके पास दो हाथ, दो पैर, एक नाक, दो आंख, ऐसे ही है, दो कान है। लेकिन उनका जो शरीर है हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, उनका जो शरीर है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। ये डिफरेंस है। हमारे अंदर ये सब इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, दिल और ये धड़कन और ये ना ब्लड वगैरह, भगवान के शरीर में ये सब कुछ नहीं है। ही डजंट हैव ए स्टमक, ही डजंट हैव ए इसोफेगस, ही डजंट हैव एनी लीवर, और जिसमें जिसमें ना ही डजंट हैव टू टेक हाजमोला व्हेन ही ईट्स फूड, he doesn't have to go for a walk to keep his tummy inside, no, because he is God. His body does not have all these issues जो हमारी हमारी जो मशीनरी है, भगवान की मशीनरी नहीं है पूरे का पूरा। his body is पूरी spiritual, so when he is eating he doesn't have to go to toilet next morning, है ना। he doesn't, because that's not how the spiritual body is. When you're eating, you enjoy everything, but there is no bad impact of it. मतलब सुबह आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू टेक इट आउट। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स ले लिया बॉडी ने और बाकी सारा निकाल दिया, नो, दैट्स नॉट हाउ स्पिरिचुअल बॉडी वर्क्स। हमें क्या लगता है, अगर हमारे दो हाथ हैं, भगवान के भी दो हाथ हैं, इसका मतलब मैं अगर भगवान से पंजा लड़ाऊंगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं जीत जाऊं। नहीं, Bhagwan is not material. We are material. So when we understand that Bhagwan is not impersonal, then we, तो भगवान इसमें कहते हैं भगवत गीता में, देर इज ए वर्स इन भगवत गीता, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे, तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना, तेषाम यस सतत प्रभु जी। सतत युक्ता नाम।
तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो एक सेकंड में शेयर करता हूं। तो भगवान कहते हैं तेषाम सतति युक्तानाम भजतां प्रीतिपूर्वकम, ठीक है। भगवान कहते हैं जो मुझे, वो हर वो बंदा जो सतत हमेशा हमेशा भजता, मुझे भजता है। कैसे भजता है? प्रीति पूर्वक। कंस के जैसा नहीं पूरे दिन अरे कृष्णा को मारना है, कृष्णा कृष्णा तेरे को मारूंगा, कृष्णा कृष्णा आई हैव टू किल कृष्णा। दैट नॉट प्रीति पूर्वकम। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ? ददामी बुद्धि योगम तम, उसको मैं देता हूँ। क्या देता हूँ? मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम, उसको येन माम उपयांति थे। क्या करेगा फिर वो? ताकि वो मेरे पास आ सके, ही कैन कम बैक टू मी। टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी with love, I give them understanding by which they can come to me. Now, हमारा चॉइस है, दिस इज आवर चॉइस, व्हाट डू वी वांट टू बिकम? डू वी वांट टू बिकम selfish like a hand, or we want to serve the stomach so that we can get nourished? This is our thing. और हमें क्या करना है? We need to make sure that we are not we understand that भगवान जो है, भगवान is not ordinary, भगवान is not like us, कि भाई भगवान इज नॉट लाइक अस, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हाँ उनको चोट लग गई है, वो परेशान हो रहे हैं, वो अपनी जिंदगी से परेशान है, बीवी डांट रही है उनको, और वो कह रहे हैं कि यार क्या कर्म करे होंगे मैंने। भगवान को कर्म नहीं लगता है। भगवान इज अब वे बियॉन्ड कर्मा एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ही इज नॉट, ही डजंट कम अंडर परव्यू ऑफ कर्मा। दोज लॉज डज नॉट अप्लाई ऑन हिम, है ना। जब नारद मुनि जब गए थे देखने के लिए भगवान को, वो 16,108 वाइब में, वो कहीं किसी कहीं कहीं पर भगवान वाज अपनी बीवी के साथ बैठ के फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे हम लोग को पालना है, कैसे बड़ा करना है, उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो कहीं पर वो भगवान कई बार यज्ञ कर रहे हैं, है ना। कहीं पर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, घोड़ा बने हुए हैं, है ना। कई बार बैठ के ब्राह्मणों को खाना खिला रहे हैं, है ना। एंड And then Narad Muni, when he saw the, he was like, "Oh my goodness, who is this person, man?" And he's living like an ordinary person. And that is the beauty of Krishna, because he is the most extraordinary, ordinary person. Most extraordinary ordinary person. That means he knows what is, because he has humility, है ना। क्योंकि भगवान का जो एक एक जो भगवान की क्वालिटी है वो है रिनंसिएशन। दैट मीन्स ही हैज गॉट ऑल नेम फेम एडोरेशन हेल्थ, सॉरी, स्ट्रेंथ ब्यूटी सब कुछ है। लेकिन इन सारी चीजें होने के साथ उनके पास एक और क्वालिटी है, वो है रिनंसिएशन। दैट मीन्स ही डज नॉट केयर अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, because that makes him humble. And that's why during Rajsuyag he took the position to wash everyone's feet, because he is not proud, autocrat. He's a very gentle autocrat. And when we read these scriptures, we should be very careful who are we reading it from, who are we listening it from, because otherwise when we read that भगवान की 16,108 बीवियां हैं, he's doing Ras Leela with everyone and all those sort of things, we don't understand who he is, you know. So we have to be very careful. So we'll stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any questions, any comment, anything anybody wants to raise or share? प्रभु जी Thank you. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। बस एक ही चीज पूछनी थी। मैं ऑनलाइन भागवतम जो है, जो लिंक जहाँ से आप स्क्रीन शेयर करते हो, हाँ तो हाँ। उसमें मुझे हिंदी नहीं मिला। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बट वो हिंदी में नहीं है। मेरे मेरे पास है श्रीमद् भागवतम हिंदी में, अगर आपको चाहिए। लेकिन जैसे मैं इसमें सर्च कर रहा था वैसे आप सर्च नहीं कर पाओगे। मेरे को आप एक काम करो, मेरे को मैसेज कर दो अपना ईमेल एड्रेस, मैं आपको, मेरे पास उसमें गूगल ड्राइव पे है जिसमें सारी की सारी हिंदी की जितनी भी शिला प्रभुपाद की बुक्स हैं, सारी की सारी हिंदी में मेरे पास पूरा फोल्डर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जी, थैंक यू। मेरे पास, मैंने भागवतम लिया है लेकिन वो भी मेरे पास हिंदी के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो इंग्लिश में आई है मेरे पास। तो मैं ना
उतने अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ। हिंदी मुझे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं में ठीक है, तो आती है। मैं आपको भेज देता हूँ। दूसरी बात, आपको हिंदी में चाहिए ना, तो आप इंग्लिश हम्म, वाली, मैं क्या करूंगा, आप मेरे से, अभी तो मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, वापस नेक्स्ट वीक मुझसे आप कांटेक्ट करना, मैं आपकी वो चेंज करवा दूंगा, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में करवा दूंगा आपको, ठीक है? और लेकिन प्रभु जी वो भी मन नहीं है मेरा, क्योंकि जब अच्छा कोई मैंने बात, भागवतन लिया था तो घर पे कीर्तन करवाया था उसको वेलकम चलो करने कोई के बात लिए, नहीं, वो सब तो है। मैं आपको हिंदी में भिजवा हम्म, दूंगा। आप उस, वो तो जो मेरे पास है ना, वो मैं पेरेंट्स के साथ मैं वही पढ़ता हूँ, मम्मी के साथ मेरी ना, तो मैं आपको वो हम्म, भिजवा दूंगा। आप उसमें उसमें तो इतनी सारी, जितनी भी शिला प्रभुपाद की बुक्स हैं सारी हिंदी में, तो आपके लिए अच्छा हो हम्म। जाएगा, है ना? तो मैं आपको बस अपना ईमेल एड्रेस ईमेल मैसेज कर एड्रेस, दूँ? ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Hare हरे Krishna. कृष्ण, Hare हरे Krishna. कृष्ण। आओ जी, थैंक यू। हरे Hare कृष्णा। Krishna. हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।